you. So we are already into the model 5, as you all are aware that in that model 5 we have dealt with the numericals on vibration measuring instruments. In that vibration measuring instrument I taught you that there are three different types, that vibrometer, velometer and accelerometer. Okay, so today I will try to cover the numericals of accelerometer. Okay, so just I am reading out the statement for all of you. An accelerometer, so you can see in the question itself they have set the accelerometer. So I told you already question को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो हमको टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे मेंशन किया रहता है. So an accelerometer has a natural frequency of 80 hertz. So in this question the natural frequency is given as 80 hertz and the damping coefficient of 8 Newton second per meter. So आपको C का वैल्यू दिया है damping coefficient which is what 8 Newton second per meter. When attached to vibrating structure it measures an acceleration of 8 meter per second square. So over here the value of acceleration which is measured by the instrument is 8 meter per second square and at as a frequency of 50 hertz. तो इसमें जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है. ट्रू एक्सेलरेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू एक्सेलरेशन. सो द ट्रू एक्सेलरेशन इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिटरमाइन द मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट. सो मास मतलब दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट m. स्प्रिंग कांस्टेंट means they are asking you to find out k, okay, of the acceleration device. So first of all, this seems to be blur right now, but I hope you understood. I am again reading the statement for you. An accelerometer has a natural frequency of 80 hertz and a damping coefficient of 8 Newton second per meter. When attached to vibrating structure it measures an acceleration of 8 meter per second square and a frequency of 50 hertz. True acceleration of structure is 7.5 meter per second square. Determine the mass and spring constant of the acceleration device. So we will solve this. So your concept starts from here. So you have to take care from here. So as you can see, natural frequency is 80 hertz given. It means they have given you the value of Fn. And once you know the value of Fn, you can get omega n. How? That omega n is equal to what? 2 pi Fn. Okay. So that Fn value is 80 hertz, which I have substituted over here. You can see here. Okay, 80. So you will get it as 502.65 radians per second. Also, they have given you the value of damping coefficient C, which is 8 Newton second per meter. So it is given in question. They have given you the force frequency, that is F. तुमको force frequency दिया है, मतलब F का value दिया है, which is 50 hertz. Now if the value of F is given, you can get the value of force frequency in radians per second. How? By using the same concept, 2 pi F. So omega is equal to 2 pi F. And that F value is to be substituted from here to there. So you can see that I have substituted the value of F as a 50 hertz. So you will get omega 314.15 radians per second. Okay. Then they are saying the recorded acceleration. When they say recorded acceleration, means they have given you the value of z double dot. Okay. जो इंस्ट्रूमेंट ने रिकॉर्ड किया है वो वैल्यू उन्होंने दी है, दैट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स दे हैव गिवन यू z डबल डॉट एज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ ट्रू एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द साइड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज वाइब्रेटिंग. ओके, सो दैट स्ट्रक्चर विच इज वाइब्रेटिंग हैविंग द ट्रू एक्सेलरेशन 7.5 meter per second square. So from the question itself you can see structure is vibrating with the acceleration value of 7.5 meter per second square
but the recorded value which is being measured by the instrument is 8 meter per second square. That is because of error. Okay, but the thing is that they have given you recorded acceleration, that is z double dot, true acceleration, that is y double dot. So these values are given to you. So we know that for acceleration this is the standard formula. आप मेरा लास्ट लेक्चर के नोट्स को प्रेफर करिए, उसको गो थ्रू करिए, तो आपको ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था. सो लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट z डबल डॉट अपॉन y डबल डॉट विच इज बीइंग इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 zeta r द स्क्वायर. ओके, so the thing is that if you see the left hand side, so z double dot is given, that y double dot you can see it is given. Okay, so left hand side is known to you, zeta. Okay, so we know that we already know the formula of zeta, which is given by what, c upon cc. Okay, and then we need r. So r is equal to what, you know the frequency ratio, it is given by what, omega by omega n. Okay, so you can see here, you know the value of omega, you know the value of omega n, so you can get the value of r directly by doing the ratio, that is being nothing but omega upon omega n. So what do you do, just substitute the value of omega from here, okay, and then omega n from here in this formula. So you will get the value of r directly. Okay, then left hand side is already known to you. So what I have done, I have substituted the values as we know this value already into my formula. Okay, so only the unknown is what, zeta. See this, only the unknown is what, zeta. Okay, so from this equation you will get the value of zeta. Now I request all of you to use your calculator after this lecture and check this value whether the zeta is 0.637 or 0.57. Okay, so if you use the calculator you will come to know what is the value of zeta. Okay, then once you get zeta from here, we know that zeta is equal to c by cc, and that cc is nothing but 2m omega n. Okay, that cc is nothing but 2m omega n. So you know the value of zeta, you have to substitute this in the left hand side. You can see here, okay, c value is already given to you, 8 Newton second per meter, so you can substitute here. Then 2m omega n, so you got the value of omega n in the given data itself. I have mentioned only the unknown is what, m. So this is your answer. Okay, so you can see we got the value of m as a 0.0124 kg. Okay, and whatever the value of zeta you will get over here in this step, so you have to take care of this value, and subsequently you have to substitute that value of zeta in this step over here. Okay, so currently I am assuming that zeta is 0.637 from this step, and I have substituted it over here. Okay, then we know that omega n is equal to under root k by m. Okay, so you know the value of omega n, that I have substituted to the left hand side. You can see right hand side under root k by m. So you got the value of m from here, so just substitute that value of m from that step to this formula, and only the unknown is k. Again I request all of you to check in your calculator, so whether you are getting this value or this value, just you have to cross verify. So accordingly this numerical has got over. Okay, so you can see that it was a question straightforward, it was a straightforward question. They have given the corresponding values, and I have substituted the values accordingly in the given formula over here, which I have marked here. Accordingly I got the value of zeta, and zeta is c by cc. So by substituting that I got the value of m, and omega n is equal to under root k by m. So substituted the value of omega n as well as m, so we got the value of stiffness k. So these were the two answers which we were supposed to find out. Okay, now it is next question. So I request all of you to please read this statement, and once you finish with the statement, then I will read it for you and we will start solving this.
Okay, so if you see the statement, क्वेश्चन के स्टार्ट में ही वर्ड एक्सेलरोमीटर आपको मेंशन करके दिया है, यू कैन सी हियर. ओके, so it is the question based on accelerometer. It has a natural frequency of 200 hertz. So in the question they have given you the value of natural frequency as 200 hertz. Damping ratio, that zeta is also given to you, so that is being given as 0.7. It is used to measure the vibration of system whose actual displacement is given by this equation. Now very important question from Mumbai University point of view. So यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 1.65 साइन 45.1 टाइम्स ऑफ टी. ओके, ना अगर किसी ने ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है एक्सेलरोमीटर के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे देखा. ओके, बट जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है. ओके, और वो बोलता है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एक्सेलरोमीटर. तो मुझे जो डिवाइस है एक्सेलरोमीटर उसका आउटपुट वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, सो डिवाइस का आउटपुट मतलब कौन सा वैल्यू होता है, जेड डबल डॉट होता है. ओके, मैंने जेड डबल डॉट इसीलिए कहा क्योंकि ये एक्सेलरोमीटर है. सो एक्सेलरोमीटर को हम जेड डबल डॉट से लिखेंगे उसके आउटपुट को. ओके, तो मैं गिवन लिखता हूँ. सो यू कैन सी एफ एन इज गिवन टू यू 200 hertz. Accordingly you can convert that Fn into radians per second, hertz into radians per second. So 2 pi Fn, so I have substituted the value of Fn as a 200, you can see here. Okay, so this value I have substituted here. Then you will get the omega n 1256.63 radians per second. Accordingly they have given you the value of damping ratio, which is 0.7. Then they have given you the structure displacement by this relation, that is 1.65 sine of 45.1 times of t. And if I compare the given displacement, means if I compare this displacement with the standard displacement equation, which is nothing but your equation 2, which is being mentioned here, you can see here, which is given by y of sin omega t. तो ये जो equation 2 है ये आपका standard equation है. Take care of this. Okay, so that standard equation is to be compared with the equation 1. Okay, so if you compare this, you will find the value of y. After comparison, you can get that value of y. This y is equivalent to 1.65 as per the given concept. Then if you compare 2 with the 1, so you will find that omega is 45.1 radians per second. Okay, so I hope you understood that I have compared the given displacement equation with the standard displacement equation. So you can see that you got the value of displacement. Now this is displacement of what? This is displacement of your structure. I told you in the last lecture itself, the y indicates the displacement of structure and z indicates the displacement of your device or the final outcome. Okay, so by comparing these two values I get y and I got the value of omega. Okay, so as you are aware that this is accelerometer device equation. Now in that you need R, you can see. So that R is being obtained by using what formula, omega by omega n, as you are already aware of that. So you can see I am using omega by omega n. So omega is 45.1, which I have got it over here, you can see. Okay, accordingly I have substituted the value. Okay, then your omega n is 1256.63.
which we got as per the given data. You can see here. Okay, so you will get the value of R, which is 0.03588. Now what I have done, as you can see that zeta is already known to you. Okay, this zeta is known to you, this R you got it over here, so you can directly get the right hand side of this equation. So in this equation, substitute R 0.03588, zeta 0.7, you will get the right hand side of the equation as 1.001 if you do the calculation. Okay, now we need लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको क्या, रिकॉर्डेड एक्सेलरेशन. क्वेश्चन में ही पूछा है व्हाट इज द रिकॉर्डेड एक्सेलरेशन वैल्यू. सो एज वी नो दैट रिकॉर्डेड एक्सेलरेशन इज नथिंग बट जेड डबल डॉट. तो हमको जेड डबल डॉट फाइंड करना है, मतलब ये वाली वैल्यू हमको फाइंड करनी है, न्यूमेरेटर की वैल्यू. ओके, नाउ हमको डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, मतलब वाई डबल डॉट पता होना चाहिए. नाउ अभी हमारे पास वाई डबल डॉट नहीं पता है, हमारे पास वाई पता है, वाई. तो अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर रिकॉल होगा तो y डबल डॉट कैन बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई. एक्सेलरेशन ऑफ मशीन पूछा है. देखो हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था जहाँ पे हमने एक्सेलरेशन ऑफ मशीन फाइंड किया था. तो एक्सेलरेशन ऑफ मशीन कैन बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई किया है. यू कैन चेक. सो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 45.1 का स्क्वायर, ये देख लो. ठीक है, एंड y इज नथिंग बट 1.6 mm. ओके, सो you will get your z double dot as a 3254.49 mm per second square. Why you are getting answer in mm per second square? Just because you have substituted the value of this y in mm. Okay, so that's why you are getting the unit mm per second square. So accordingly you will get z double dot as 3.25 meter per second square. I have converted the mm per second square into meter per second square. This is finished. Now I would like to tell you that such numericals comes in university paper for 10 marks. So these are not the toughest numerical as compared to the other numericals. So I request all of you to go through these things very carefully and practice as much as you can. Okay, and still if you feel anything difficult, you can ask your doubt to me anytime. Okay, now I request all of you to read the next statement, next numerical, which is again यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल. तो ये इतना रीड करो, देन मैं आपके लिए रीड करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा. सो प्लीज़ रीड इट. Okay, fine. So determine the necessary stiffness. When they say stiffness means value of K, and the damping constant. So damping constant is nothing but the value of C. So they are asking you to find out damping constant means the value of C of an accelerometer. You can see here again the question is based on accelerometer. Okay, so we have to solve it for the accelerometer. If the maximum error, now be very much careful, they have given you this word maximum error. ये वर्ड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है न्यूमेरिकल में, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, अभी याद रखो ये एक क्रिटिकल वर्ड आपको दिया है, मैक्सिमम एरर. इट इज़ टू बी लिमिटेड टू 3%. Now error is maximum limited to 3%. Now ये increase in error है कि decrease in error है हमको पता नहीं, but maximum error जो है वो 3% है. For measurement in the frequency range of
0 to 100 हर्ट्स। तो इस डिवाइस को 0 to 100 हर्ट्स के फ्रीक्वेंसी में यूज़ करना है मेजरमेंट के लिए, और उस टाइम पे जो एरर आने वाला है वो मैक्सिमम एरर लिमिटेड टू 3% है। अज्यूम दैट द सस्पेंडेड मास मीन्स द वैल्यू ऑफ m, मास इज गिवन, मतलब m का वैल्यू तुमको दिया है। सो द वैल्यू ऑफ m दैट इज मास इज 0.05 kg। ओके, ना एक चीज़ याद रखो, जब कभी भी एक्सेलेरोमीटर के न्यूमेरिकल में आपको मैक्सिमम एरर वर्ड अगर मेंशन करेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यू कैन सी हियर, ये वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। ओके, एंड दिस इज E। ओके, एरर मीन्स व्हाट? E। सो दिस इज E, मैक्सिमम एरर। ओके, Z double dot by Y double dot, as it is accelerometer, so left hand side will always remain Z double dot by Y double dot. So it is to be maximum, because I told you in the last lecture itself, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसी को हम एरर बोलते हैं, रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एरर। तो वो एरर हमको मैक्सिमम लेना है, तो Z double dot by Y double dot मैक्स लिखा है मैंने, यू कैन सी हियर। ओके, विच इज़ नथिंग बट एरर मैक्स, सो E मैक्स लिखा है, और राइट हैंड साइड आपका सिंप्लीफाई होके इतना आ जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, यह फॉर्मूला हमको तभी यूज़ करना है जब आपको मैक्सिमम एरर करके मेंशन किया गया रहेगा। ओके, तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, नाउ एरर जो है, एरर वो 3% है, मैक्सिमम लिमिटेड टू 3% है। बट अब ये पॉजिटिव साइड है, मतलब इंक्रीज इन एरर 3% है कि डिक्रीज इन एरर 3% है, ये कहीं पे मेंशन नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्या बोला है कि एरर जो है वो मैक्सिमम 3% है, बट ये 100% में 3% ऐड हो रहा है कि 100 में से 3% सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, सो हमारे पास अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि एरर की वैल्यू, मतलब रेशियो की वैल्यू, अगर आप 3% ऐड करते हो तो 103 हो जाएगा ना, दैट इज़ 1.03, और अगर 3% सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हो जाएगा 0.97। ओके, तो ये इसीलिए, ये डायलेमा इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ये मेंशन नहीं करके दिया गया है कि ये मैक्सिमम एरर ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ थंब रूल्स फॉलो करने की कोशिश करूँगा। थंब रूल्स जो टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास एरर की 2 वैल्यूज़ अवेलेबल है, ठीक है, एक है 1.03 जैसे कि इस केस में देख सकते हो आप, और एक है 0.97, तो हमेशा लोअर वैल्यू को सेलेक्ट करो, मतलब मैं 0.97 को सेलेक्ट करूँगा। ओके, ये थंब रूल है, ये एजम्पशन है। ठीक है, सो देयर इज़ नो such concepts to be mug up. This is what assumption. So assume the error value is 0.97 for case 1. तो अब अगर मैंने एरर 0.97 लिया तो आप देख सकते हो वो 0.97 मैंने इस फॉर्मूले में, आई एम रेफरिंग दिस फॉर्मूला ओनली। सो यू कैन सी हियर दिस वैल्यू विल बी 0.97, राइट हैंड साइड इज ओनली जीटा अननोन, सो कीप इट अननोन। नाउ सॉल्व दिस, ये इक्वेशन तुमको जस्ट सिंपल वे में सॉल्व करना है। ठीक है, अगर अभी आप सॉल्व करोगे, एक ही अननोन है जीटा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अगर मैं कैल्सी में शिफ्ट सॉल्व ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, मैं कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कैसे हो रहा है वो, ये डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर के साथ, तो ये फॉर्म में आ गया। देन ये 2 और 0.97 मल्टीप्लाई करके मैंने ये 1.94 लेके आ गया। फिर ये अंडर रूट है ना, तो ये 1/1.94, इसको डिवाइड कर दिया तो 0.5154 आ गया। फिर ये अंडर रूट साइन को हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये जीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब स्क्वायर होगा तो यू कैन सी दिस इज इन द ब्रैकेट जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द ब्रैकेट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो जब वो ब्रैकेट ओपन होगा सो दिस विल बिकम जीटा स्क्वायर माइनस जीटा रेज़ टू 4, और ये जो प्लस इधर था ये लेफ्ट साइड में आके माइनस होके इक्वल टू 0 हो जाएगा।
सो ये टर्म को जस्ट मैंने रीअरेंज किया है, यू कैन सी दिस इक्वेशन. ओके, सो if you solve this thing, if you solve this equation in your calculator, I hope you know how to solve these equations in your calculator. power raised to 4 है तो क्या करने का, zeta square is equal to x assume कर लो, and then zeta raised to 4 x square हो जाएगा. x square को substitute करके you can solve. I know you have done such things in your past also. even हमने वाइब्रोमीटर और वेलोमीटर के न्यूमेरिकल में भी ये स्टेप देखा था. ओके, सो मुझे इसको सॉल्व करने पे मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है. जीटा का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 0.707. ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. एक्सेलेरोमीटर के लिए जो दूसरा थंब रूल है, एक थंब रूल तो ये था कि अगर दो वैल्यू अवेलेबल है तो लोवेस्ट वैल्यू को लेके सॉल्व करो, ठीक है. दूसरा थंब रूल ये है कि अगर तुमने वैल्यू सॉल्व किया एक्सेलेरोमीटर के लिए तो जीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 0.707 आना चाहिए, ठीक है. सो दैट वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन 0.707. दिस इज व्हाट थंब रूल जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. लेस देन आना चाहिए, इक्वल टू नहीं आना चाहिए, ठीक है. बट यहाँ पे क्या हो गया, जीटा का वैल्यू इक्वल टू 0.707 आ गया. ओके, इसका मतलब क्या पता है, जो तुमने एजम्पशन किया था ना जीटा ये एरर इज 0.97, ये रॉन्ग एजम्पशन है, ये हमने प्रूव कर दिया. क्यों प्रूव किया, सॉल्व करने पे जीटा का वैल्यू इक्वल टू 0.707 आया. दिस शुड बी लेस देन 1/√2. दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1/√2, ठीक है. जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसीलिए जो रेशो था, एरर था 0.97 इनवैलिड कहलाएगा. अब अगर 0.97 इनवैलिड है तो वैलिड क्या है, ये वाला. तो वापस तुमको वही प्रोसेस रिपीट करना है, बट अब ये रेशो जो है 1.03 लेके करना है. सो अगर 1.03 लेके करोगे, वापस आपको कन्वेंशनल मैथमेटिक्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके देन स्क्वायर रूट हटा के ये सब अरेंज करके पावर फॉर्म में लाके आपको इसको सॉल्व करना है. तो आपको जीटा की दो वैल्यू मिलती है बिकॉज ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक. ओके, अब अगर यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिली तो मैंने आपको क्या बताया, जीटा शुड ऑलवेज बी लेस देन 0.707. तो अब ये दो वैल्यूज में से कौन सा वैल्यू 0.707 से कम है, दिस वैल्यू. इसका मतलब दिस वैल्यू इज इनवैलिड, सो I will not consider this value. So zeta is 0.614 is my final conclusion. So once you selected the value of zeta, you got the value of zeta. As you can see that in the numerical, they have given you the word maximum error, which we have already seen. I have highlighted multiple times over here. तो अगर maximum error word mention किया हो तो उस टाइम पे आर का भी एक स्टैंडर्ड डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो आप इधर से देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है. सो अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम एरर वर्ड बोला हो तो आप आर का वैल्यू स्टैंडर्ड लिख सकते हो √1 - 2 जीटा स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. ओके, अब आपने जीटा की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की थी, 0.614. तो वो सेलेक्टेड वैल्यू आप देख सकते हो मैंने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी है. और ये जो अंडर रूट है ये पूरा यहाँ तक है. ओके, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे आर की वैल्यू 0.495 मिल जाएगी. वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ आर, ओमेगा विल बी 2πf. सो फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज ऑफ, यू कैन सी हियर 0 to 100. ये देख सकते हो आप, दिस रेंज इज 0 to 100. सो व्हाट इज द पिक फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज. सो ओमेगा पिक will be 2π100. So you will get omega 628.31 radians per second. Now you got the value of r earlier over here. You can see here, this is the value of r and this is the value of omega which you got. So r is equal to omega by omega n, you know that. बट हम ओमेगा की पिक वैल्यू लिख रहे हैं इसलिए ओमेगा पी लिखा है, और आर की भी हम पिक वैल्यू लिख रहे हैं तो आप आर पी यहाँ पे लिख सकते हो. सो अकॉर्डिंगली यू कैन गेट ओमेगा एन विच विल बी ओमेगा पी बाय आर पी. इसको रीअरेंज करने पे आ जाएगा. तो आपको ओमेगा पी यहाँ पे मिल चुका है, तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो. आर की वैल्यू आपको
प्रीवियस पेज पे मैंने बताया, वहाँ पे मिली है, सब्स्टिट्यूट करो, आपको ओमेगा एन मिल जाएगा 1269.33 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, एंड देन ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। सो आपके पास ओमेगा एन मिल गया है, वो उठा के यहाँ पे डाल दो, और आपको क्वेश्चन में एम का वैल्यू कितना दिया, जस्ट चेक। आपको मास दिया है 0.05, यू कैन सी हियर लास्ट वर्ड ओनली, दैट वैल्यू इज गिवन एज 0.05 kg। सो अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको स्टिफनेस मिल जाएगा 80.55 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ओके, सो यू कैन सी दैट ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर मैक्सिमम एरर नाम का एक कॉन्सेप्ट आया। तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम एरर आएगा तो फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। देन मैक्सिमम एरर पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है वो पता नहीं था, तो हमने दो पॉसिबिलिटी लिखी, टेक्स्ट बुक के थंब रूल को फॉलो किया, तो लोवेस्ट वैल्यू को हमने कंसिडर करके सॉल्व किया, जीटा का वैल्यू चेक किया। एक्सेलेरोमीटर में जीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 0.707 होना चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल टू 0.707 आया, मतलब जो हमने पहले अजम्पशन किया था एरर 0.97 वो इनवैलिड एरर है। फिर हमने नेक्स्ट जो था 1.03 एरर वो लेके वापस डील किया और जीटा की वैल्यूज निकाली। एज यू नो दैट जीटा शुड बी लेस देन 0.707, तो ये दो वैल्यूज में से ये वैल्यू इनवैलिड बन जाएगी क्योंकि ये ग्रेटर देन 0.07 है, तो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू वैलिड हो गई, सॉरी। देन तुमको आरपी, अगर पिक और मैक्सिमम एरर वर्ड दिया है तो आर का फॉर्मूला डायरेक्ट अंडर रूट 1/2 जीटा स्क्वायर होता है, मैंने बताया, उसमें जीटा डाल के आप आर निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी जो आपको पिक फ्रीक्वेंसी दी है वही लेना है, दैट इज 100 हर्ट्ज, वो ले लोगे। आरपी मिल गया, आरपी से आप ओमेगा एन निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, एंड देन ओमेगा एन मिलने के बाद अंडर रूट के बाय एम करके आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो मैंने फाइंड कर लिया। ओके, सो टिल नाउ I am solving the university questions only. You can see everything is based on formula. Okay, now I request all of you to read this statement, then I will read it for you and I will try to solve for you. Please read it. Fine. So you can see that again in the question itself they have used an accelerometer. So device is accelerometer device. Okay, it has a suspended mass, so the value of mass is 0.01 kg with a damped natural frequency. So तुमको डैम्प फ्रीक्वेंसी दिया है, डैम्प फ्रीक्वेंसी है, ये याद रखना, जो वैल्यू है 150 हर्ट्ज। It is mounted on an engine undergoing an acceleration of 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इंजन का एक्सेलरेशन दिया है आपको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डैम्पिंग कांस्टेंट and the spring stiffness of the accelerometer. Take recorded acceleration as 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मशीन का एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और रिकॉर्डेड एक्सेलरेशन 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, एंड दे हैव गिवन यू द स्पीड, दैट स्पीड इज 5000 RPM. Okay, so now just try to understand the given which I have already mentioned here. Mass is given, damp frequency is given. Now over here damp frequency is given means FD given. Okay,
So that FD is 160 hertz. Once the FD is given, you can get omega d. How? 2 pi into FD. So you can see that this value of FD is substituted over here. Okay. So Z double dot, that is recorded acceleration, is mentioned to you, and the engine acceleration is given to you. So all these values are given. Speed is 5000 rpm. So you can get omega, that is 2 pi n by 60. So 2 pi, you can see I have substituted the value of n as a 5000 over here. So you got the value of omega. Now see, this numerical is one of the favorite question of Bombay University. Okay, and why it is favorite? ये है 3 से 4 स्टेप का ही आंसर, लेकिन बच्चे लोग बहुत बड़ी ब्लंडर करके आते हैं. ठीक है, सो मैं ट्राई करूँगा आपको ईजीएस्ट वे में समझा सकूँ. ओके, सो समझने की कोशिश करिए. आपने ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ओके, सो व्हाट यू कैन सी दैट ओमेगा डी आपको पहले से मेंशन है, वो मैंने डाला. ओमेगा एन मुझे दिया नहीं है तो मैंने नहीं टच किया. जीटा भी नहीं दिया है, मैंने कुछ उसको टच नहीं किया, मैंने उसको एज इट इज रखा. तो यू कैन सी दैट ये जस्ट सब्स्टिट्यूशन किया है मैंने. ओके, नाउ वी ऑल्सो नो दैट आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन. पता है ना, ये रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, सो हमको ओमेगा की वैल्यू पहले से पता है, वेयर इट इज हियर 523.59 एंड द यूनिट विल नॉट बी हर्ट्ज. दिस इज रेडियंस पर सेकेंड. ओके, सो यूनिट विल बी रेडियंस पर सेकेंड. तो वो देखो, मैंने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है प्रीवियस स्टेप से. ओमेगा एन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आर आ जाएगा. जस्ट रीअरेंज द टर्म्स. ओके, ये टर्म्स को रीअरेंज कर दो, यू विल गेट द प्रॉपर वैल्यूज. ओके, तो ये रीअरेंज करके मैंने ये ला दिया. इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा एन इन टर्म्स ऑफ आर आ गया. तो ये जो वैल्यू मिली है ना, इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे. ठीक है, सो आप देख सकते हो ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन मैंने रीसब्स्टिट्यूट किया, तो ये एज इट इज वैल्यू मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ओके, आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ चुका है. अगले स्टेप पे मैंने क्या किया है, जस्ट ये टर्म को रीअरेंज किया. ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया हूँ, देख सकते हो. तो यहाँ डिवाइड बाय है, तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये 523.598 लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यू कैन सी हियर राइट साइड में जीटा के फॉर्म में बच गया. अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो मुझे 1.92 मिलता है. वो जो भी नंबर्स है 1.92 टाइम्स ऑफ आर वो बच जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ये वैल्यू मिलती है. ओके, इसके बाद मैंने क्या किया है, ये अंडर रूट को स्क्वायर कर दिया है, तो 3.69 आर स्क्वायर दैट इज 1 माइनस जीटा स्क्वायर. और वो 1 को रीअरेंज कर दिया, तो जीटा स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर आ गई. बस अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जीटा और आर का रिलेशन फाइंड किया है यहाँ पे. अब ये एक्सेलरोमीटर का न्यूमेरिकल है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, विच कैन बी गिवन बाय दिस रिलेशन. ओके, जेड डबल डॉट इज नोन टू यू, मतलब रिकॉर्डेड एक्सेलरेशन दिया है, और स्ट्रक्चर एक्सेलरेशन, ट्रू एक्सेलरेशन ये भी दिया है. तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने सब्स्टिट्यूट किया. राइट हैंड साइड को जरा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर पे फोकस करो, और डिनोमिनेटर में भी लास्ट वाले टर्म पे फोकस करो. मीन्स ये टर्म 2 जीटा आर द होल स्क्वायर है ना, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो दिस विल बिकम 4 जीटा स्क्वायर आर स्क्वायर. व्हाट? 4 जीटा स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है, तो जीटा स्क्वायर इज नथिंग बट 1.369 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर. ये दिख रहा है, ये इसीलिए तो मैंने फाइंड किया था. जब जीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा. यहाँ पे एक करेक्शन है आप सबके लिए, ये ऑलरेडी बाहर जो आर स्क्वायर है मल्टीप्लीकेशन में, वो आपको लिख के लेना है. ठीक है, सो अब ये आपको समझ में आ जाएगा. 2 जीटा आर तो स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 जीटा स्क्वायर, मतलब ये पूरी वैल्यू उठा के डाल दिया मैंने. ओके, और आर स्क्वायर एज इट इज ये रह गया. अब लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो है वो रेशियो 0.978 आ जाएगा. ये देखो, इसको मैं जरा भी चेंज नहीं कर रहा, आई एम कीपिंग इट एज इट इज.
और ये 4r² पहले का जो होता है ये ऐसा ही रखा है, मैंने देख सकते हो, और ये ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो वो पूरा स्टेप मैंने सही से लिखा है। अब अगर आप पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो पूरे में सिर्फ एक ही अननोन है और वो है r का वैल्यू। ओके, यू कैन सी दैट ओनली वन अननोन इज देयर, r. Now it's your duty to solve this equation. Now how to solve this equation? It is the simple 7th standard maths. आपको अंडर रूट है तो उसको स्क्वायर करो, फिर ये जो ब्रैकेट है और इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1 माइनस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर है तो a माइनस बी द स्क्वायर फार्मूला लगाओ, उसको सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आपको एक r⁴ के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसको कैल्सी में सॉल्व करो तो आपको r² की एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब r² है तो r की वैल्यू क्या होगी, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ओके, अब ये कौन सा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर है, डैम्प एक्सेलरोमीटर के ऊपर है। किसके ऊपर है, डैम्प एक्सेलरोमीटर। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जब फर्स्ट लेक्चर था तब मैंने आपको बताया था डैम्प एक्सेलरोमीटर के लिए r का रेंज होता है। मैं वापस दिखाता हूँ आज आपको, डैम्प एक्सेलरोमीटर के लिए r का रेंज होता है, दिस कम्स इन द रेंज ऑफ 0.3 to 0.7। याद आया? सो दिस इज फॉर डैम्प एक्सेलरोमीटर, ठीक है। तो ये देखो ऐसा है। सो अब हमारे लिए कौन सी वैल्यू वैलिड होगी, जो 0.3 से 0.7 के बीच में आएगी। ओके, सो वी आर गोइंग देयर अगेन। तो कौन सा वैल्यू रेंज में है, ये वाला रेंज में है। ये वैल्यू तुम्हारा इनवैलिड वैल्यू है क्योंकि ये 0.3 से 0.7 के बीच में नहीं आता है। ओके, सो r इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा n। यू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑलरेडी, देखो सब्स्टिट्यूट किया है, यू गॉट द वैलिड वैल्यू ऑफ r 0.3423 सब्स्टिट्यूट किया, यू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा n, एंड दिस ओमेगा n विल कम इन द यूनिट ऑफ रेडियंस पर सेकेंड। ओके, देन ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। सो तुम्हारे पास ओमेगा n ऑलरेडी है, तुमने यहाँ से फाइंड किया, और तुम्हारे पास m का वैल्यू ऑलरेडी है, सो तुमको k मिल जाएगा। यू कैन सी इन द क्वेश्चन योर मास वैल्यू इज 0.01 kg, तो वो मास वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब इसमें तुमको एक और वैल्यू पूछा है, क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, सो डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब आपको c का वैल्यू फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। सो आई हैव नॉट रिटन हियर बिकॉज आई वांटेड यू टू सॉल्व दिस। हाउ यू कैन गेट, वी नो दैट zeta इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन 2m ओमेगा n। ओके, सो यू फर्स्ट हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ zeta। ये वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी ना, अगर आपको c का वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब इसके अलावा बाकी सारे के सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो zeta कैसे निकलेगा, देखो आपको r का वैल्यू मिल गया है ना, दिस इज योर वैलिड वैल्यू ऑफ r। ये r को zeta के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करो ना, ये देखो हमने रिलेशन फाइंड किया है ना, दिस रिलेशन, यू नो द रिलेशन बिटवीन zeta एंड r। ओके, तो उस वहाँ पे r को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दिस ओवर देयर, यू कैन सी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये पूरा यहाँ पे लेके आना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आपको zeta मिल जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। ओके, राइट साइड में डिनोमिनेटर में m का वैल्यू आपको पहले से गिवन है और ओमेगा n आपने फाइंड किया है, तो ये वैल्यू आप ओमेगा n की उठा के यहाँ पे डाल दो। पूरे में अननोन क्या रहेगा, c, और वो आपको मिल जाएगा इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ओके, so this part is left to you, then how to solve I told you already. Okay, so what I can conclude till date, now come to the very important point. I have finished your module 3, module 4, module 5. If you recall, in module 5 we have solved 6 different cases. Okay, we have solved 6 different
cases that you should remember, and in all cases we have at least tried to solve 3 to 4 numericals. Okay, and these all numericals are from Mumbai University. Okay, so by this I can conclude आपका जो वाइब्रेशन मैंने पहले ही बताया था, डॉम जो है वो 2 सब्जेक्ट्स को मिला के बना है, टॉम 2 एंड वाइब्रेशन. तो आपका जो वाइब्रेशन का पार्ट है वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ, दैट इज मॉड्यूल 3, 4, 5. एंड इफ़ यू सी एनी यूनिवर्सिटी पेपर, you will be able to solve now 40 marks paper easily. You will be able to solve the 40 marks paper. Okay, so I request all of you to do the maximum practice of module 3, 4, 5 questions. Still, if you find anything difficult and if you have any doubts, you can ask your doubts to me personally on my WhatsApp number, or you can share your doubts on your official WhatsApp group. Okay, so thank you so much all of you and take care.